خداوند کی شکر گزار ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. یہ کلام مقدس آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن میں نے اس کلام سے جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اسے سیکھا کہ خدا ہماری فکر رکھتا ہے. اس میں تسلی کی بات بھی ملتی ہے، لیکن میں اس کا مضمون جو ہے یہ نکالتا ہوں کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیں یشوع پہلا باب، اس کی 3 ایسے ہم پڑھیں گے. چند ایتے خدا کے حضور میں کلام مقدس سے پڑھیں گے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، خدا ہمیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور جس کا وعدہ اس نے کیا اس جگہ پر وہ لے کر جانا چاہتا ہے. اپنے بندہ موسیٰ کو استعمال کیا، جب وہ وفات پا گئے پھر خدا نے اپنے بندہ یشوع کو اٹھایا. تو میں اس لفظ سے اس بات کو سیکھتا ہوں کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. تو بیٹا یوں میری رہنمائی کرے گا کلام مقدس میں سے. اس کا پہلا باب ہے، 3 سے چند ایتے خدا کے حضور میں ہم پڑھیں گے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوار ٹکے گا، ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. شکریہ. خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا فضل. اسی طرح یوحنا 14 باب اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے. یہاں پر بھی بات تسلی کی ہے، لیکن خدا ہماری فکر کرتا ہے. یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب یہاں پر لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. خوبصورت بات یہاں خدا یشوع کو کہہ رہا ہے کہ حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا. اور یہاں پر یسوع المسیح کے اپنے الفاظ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے. خدا ہمارے اٹھنے کی، ہمارے بیٹھنے کی، ہمارے کھانے کی، ہمارے پینے کی وہ فکر مند ہے. اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس مقام میں جائیں جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا. خدا کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری فکر کرتا ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس موت میں مر جائے، اس گناہگار زندگی میں مر جائے، اور رات اس آگ جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں. خدا نہیں چاہتا. خدا اپنے بندہ موسیٰ کو اس قوم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ابراہیم سے لے کر خدا اس ملک کلام میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہے. اور آج خدا مجھے اور رات کو اس فردوس، اس جنت میں لے کر جانا چاہتا ہے. اور جائیں گے کیسے؟ کس طریقے سے ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کس ذریعے سے ہم اس نئے یروشلم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ خدا تو ہماری فکر کر رہا ہے. وہ اپنے بندہ موسیٰ کو اس نے استعمال کیا، اور پھر اس نے اپنے بندہ یشوع کو کہا کہ تو حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو. تیرے پاؤں کا تلوا جس جگہ پر پھیل جائے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں. گھبرا مت. جیسے میں اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ
हर घड़ी हमारी फिक्र करता है। याद रखिए, मैं और रात इस बात से बेखबर होती है। हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि खुदा हमारे लिए कौन सी बरकत को भेज रहा है, कौन सी नेमत हमारे लिए मुहैया कर रहा है। आप इस बात से बेखबर होते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि खुदा हमारी फिक्र करता है। इंसान उसे भूल भी जाए, वो भूलता नहीं। इंसान खुदा के नजदीक ना भी आए तो वो फिर भी उसकी फिक्र करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा एक न एक दिन मेरी आवाज को सुनकर मेरे पास आएगा। तो इसलिए खुदा ने अपने बंदा यीशु को इस बात के लिए खड़ा किया, इस कौम के लिए खड़ा किया कि यीशु उठ, इस कौम को उस मुल्क में पहुंचाना है, इस कौम को उस मुल्क के अंदर लेकर जाना है। अब ये तेरी ड्यूटी है। अब मेरा बंदा मूसा वफात पा चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है। अब तू इस कौम की रहबरी कर, अब तू इस कौम के आगे आगे चल और इनकी निगाहबानी कर और इनको यहाँ से वहां तक इनकी पहुंचने में इनकी गाइडेंस कर, इनकी फास्ट कर, इनको सिखा कर वहां पर लेकर जा। जैसे आज बहुत सारे खादम बहुत सारी कलीसिया में जाकर खुदा का कलाम सुना रहे हैं, उसकी मनादी कर रहे हैं और इस बात के लिए उसकी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फिर आने वाले हैं और अपनी दुल्हन को लेकर जाने वाले हैं। उस वक्त यीशु को खुदा ने इस्तेमाल किया। आज खुदा अपने मुबश्शिर, अपने खादमों को, एल्डरों को, डीकनों को, बहनों को, खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। वो जाकर कलीसिया के अंदर जब मनादी करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि नए यरूशलेम में जाने का तरीका क्या है या उस शहर में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि खुदा उस शहर में हमारे लिए हर बरकत को रखे हुए हैं। वहां पर भूख ना होगी, वहां पर प्यास ना होगी, हर चीज वहां पर आपके लिए मुहैया। जाएंगे कौन लोग उस शहर में दाखिल होंगे? खुदा तो हमारी फिक्र कर रहा है, लेकिन हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हमें भी उसके हुजूर में आने की जरूरत है, हमें भी उसको अपना दिल देने की जरूरत है। खुदा की कलीसिया, खुदा कोई बड़ी चीज नहीं मांगता, ना कोई मेंढा, ना कोई चतरा, ना कोई बकरा, कोई चीज। खुदा कहता है ये तो सब कुछ मेरे, क्या मैं मेंढों का खून पीऊंगा या उनका गोश्त खाऊंगा? ये तो सब कुछ मेरे है। बहुत सारे लोग अपने गुनाहों के कफारा के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए बकरा, चतरा खुदा के हुजूर नजर कर दिया तो वो समझते हैं देके चढ़ाकर सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। खुदा की कलीसिया, खुदा को मुझे हवाला मेरे ज़हन में, खुदा कहता है मैं तुम्हारे इस नजरों और हदियों पर नजर भी नहीं करता। खुदा अगर देखता है तो वो मेरी और आपके दिल की खूबसूरती को देखता है। खुदा हमारा ऊपर से जो खूबसूरत लिबास है उसकी तरफ निगाह नहीं कर रहा। खुदा हमारी फिक्र जरूर करता है, लेकिन खुदा हमारे अंदर की पाकीज़गी को मांगता है। खुदा हमें चाहता है कि हम अंदर से उसके लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हवा में उड़कर इस्तेमाल आप उस वक्त ही करेंगे जब आपके जामे धुले होंगे, आप बरे के लहू से पाक होंगे, तो आप उस शहर में पहुंच जाएंगे। आप बाखूब इस कलाम से वाकिफ है कि खुदा के बंदा मूसा ने इस कौम के लिए कितनी स्ट्रगल की है। हाँ जी, दरिया कुलज़म पर क्या है, वो कौम मूसा पर बड़बड़ा रही है। मूसा क्या वहां पर मरने के लिए अच्छे कब्रिस्तान न थे, वहां पर शहर न था, तो हमें कहाँ ले आ? आगे समुद्र, आगे दरिया कुलज़म, पीछे फराउन के रथ। मूसा तो कहाँ ले आया? मूसा खुदा का बंदा ने बड़ी स्ट्रगल की और जहां तक उस कौम को खुदा, अगर खुदा जाता तो उसकी मार्फत भी लेकर उस मुल्क के कलाल में उनको पहुंचा सकता था। क्यों जी? पहुंचा सकता था कि नहीं? खुदा के मंसूबे, खुदा की भलाई, खुदा के कलाम को समझने के लिए गहराई के अंदर उतरने की जरूरत है। खुदा हमें इस्तेमाल करता है। खुदा ने इसके बाद अपने बंदा यशवा को इस्तेमाल करना था। जैसे
एलिया के बाद अलीशा को इस्तेमाल किया। खुदा का बंदा जैसे मौजज़ात करता तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा लगे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। उसकी कब्र के अंदर हड्डियों में जब मुर्दे को रखा तो वो जी उठा। खुदा अपने लोगों के अंदर ये कुव्वत रखता है, ये पावर रखता है, ये ताकत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदा को कहता उठ। ये तसल्ली का कलाम भी आप इसको कह सकते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। फिर यीशु को कह रहा है कि यीशु उठ, घबराना, हौसला रख, मजबूत हो, चल। अक्सर कार हम डिसहार्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, खुदा मेरे साथ पता नहीं काम नहीं कर रहा। खुदा की कलीसिया याद रखे, नहीं, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ हर वक्त है, खुदा आपकी फिक्र कर रहा है। हो सकता है कि आपसे कोई खता होगी, हो सकता है आपको खुदा जैसे इस्तेमाल करना चाह रहा है, आप हो नहीं रहे। खुदा अपने लोगों को जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। जैसे पौलुस को गैर कौम के लिए इस्तेमाल किया, रसूलों को इस्तेमाल किया, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। खुदा ने तरह बतरह खिदमतें रखी हुई है। खुदा हमें खिदमत में किसी को खुदा ने शफा की नेमत दी है, किसी को नबूवत की, किसी को कलाम की। तो इस कौम के लिए खुदा ने अपने लोगों को, और यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह के अपने लफ्ज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि आप खुदा पर ईमान रखते हैं, मुझ पर भी ईमान रखो। जैसे खुदावन पर आप ईमान रखते हैं, मुझ पर ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान होते तो मैं तुम्हें कह देता, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आता हूँ तुम्हें अपने साथ। इसका मतलब है कि वो जल्द आने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है, पता नहीं कब, लेकिन मसीहों के लिए ये एक उम्मीद और ये पुरआस बात है, पक्की बात है कि वो जरूर आसमान जब वो आएंगे हर नजर उन्हें देखेगी, उसे किसी जगह पर स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो नीचे बादलों के रथ पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आ रहे हैं। तो इसलिए खुदा की कलीसिया, अगर खुदा आपकी फिक्र करता है, अगर खुदा आपके लिए फिक्रमंद है, तो हमें भी फिक्रमंद होना है। हमें भी, जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे किथे चली यहोवा दे घर चली। मैं इस बात के लिए खुदा मेरी रूह से हरनी पानी की नालों को चलती है, मेरी रूह तेरे कलाम के लिए। हमारे अंदर काश ऐसा हो कि हमारी रूह खुदा के कलाम के लिए तड़पे और हम इस बात के लिए फिक्रमंद हो कि खुदा का कलाम, खुदा की वो बख्शिश, खुदा की वो बातें अगर हम सुनेंगे तो हमारी वहां तक रसाई है। कलाम के बगैर हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, हम उस अपने मकान में नहीं जा सकते। खुदा हमारी फिक्र कर रहा है। खुदा ने अपने नबियों को, अपने बंदों को इस्तेमाल किया है, किस किस रास्ता से, मुश्किलों से, परेशानियों से उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया, और वो उस कौम को उस मुल्क से, उस गुलामी से निकाल कर उस जगह पर लेकर जाना चाहते थे जहां पर खुशी, शादमानी है। क्या आप खुदा के लिए फिक्र करते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं, लेकिन हमने उन बातों को छोड़कर खुदा के पीछे चला, खुदा के पीछे आना। और जैसे उसने अपने बंदा यीशु को कहा, आज मैं कहता हूँ कि खुदा आपसे कह रहा है, ऐ कलीसिया, हौसला रखो, मजबूत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पाँव का तलवा जहाँ टिकेगा मैं वो जगह तुम्हें दे दूँगा। इस बात के लिए गम से फिक्र करने की जरूरत नहीं। खुदावंद का आज शाम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये छोटा सा मैसेज, छोटा सा कलाम हमें दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा बुजुर्ग पड़ोस में कहता है, हम 5000 बातें कहें, अगर समझ हमारी कोई भी ना है तो उस कलाम का फायदा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज खुदावंद ने मेरे साथ और आपके साथ जो बात किया है कि हमने एक तो बेदिल नहीं होना, हमने हौसला नहीं हारना, आपने डिसहार नहीं होना। अक्सर कार
ہم پر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے کوئی، تو آپ پہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اور خدا کے اس وعدہ کو یاد کرنا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں ہر راستے میں، ہر موڑ میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوں۔ اگر خدا آپ کے باپ کے ساتھ رہا ہے ویسے ہی خدا آپ کے ساتھ۔ اکثر کار ہوتا ہے نا، دنیا تو رخصت ہو جائے، باپ چلا جائے تے پیچھے لوگ کہنے نا ہائے یہ بچیاں نہیں بیاہ والی سی، اجے بچے سارے بیاہ والے۔ وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا، وہ اس سے زیادہ وہ جو آسمان پر بیٹھا ہے عظیم باپ، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں آنا جانا تو لگا ہے۔ انسان جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس نے اس دنیا سے موو ہونا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ موسیٰ چلا گیا، اس نے یشوع کو استعمال کیا، اسی طرح خدا طرح و طرح کی خدمت دے کر ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ تو خداوند آج کے کلام سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے،